آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھنگ اور چنیوٹ میں کرونا ایمرجنسی کے باعث اسکولز کی بندش کا سلسلہ ختم۔ سرکاری اور نجی اسکول کھول دیے گئے۔ محکمہ تعلیم نے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے خصوصی مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا ایمرجنسی کے باعث اسکولوں کی بندش کا سلسلہ ختم ہو گیا، جس کے بعد آج سے سرکاری اور نجی اسکول کھول دیے گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر اسکولوں میں 50% طلبہ کو بلایا گیا۔ محکمہ تعلیم نے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے خصوصی مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلبہ نے اسکولوں کے کھلنے کو اچھا اقدام قرار دیا ہے۔ پڑھائی کی طرف سے بہت نقصان ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اسکول کھول کے، ہم گورنمنٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکول کھول دیا۔ چنیوٹ میں بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کھل گئے۔ اسکول انتظامیہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک ہے۔ سی ای او ایجوکیشن چنیوٹ کا کہنا تھا کہ 50% حاضری اور حکومتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، ہینڈ واش، سوشل ڈسٹینسنگ اور 50% حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے امتحانات کا شیڈول بھی تیار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے طلبہ کو تیاری کروائی جائے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے فیصلے کو طلبہ کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق ایس او پیز پر ہر ممکنہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا تاکہ طلبہ کا تعلیمی سفر بحال رہ سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ آپ کو بتائیں کہ بسلسلہ روزگار بیرون ملک جانے کے لیے پاکستانی شہری مشکلات سے دوچار۔ مختلف ممالک کی جانب سے جاری کردہ متعلقہ ویکسینیشن نہ لگنے سے پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے آزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے والے پاکستانی شہری مختلف ممالک کی جانب سے جاری کردہ متعلقہ ویکسین نہ لگنے سے پریشان ہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جانا ہے جبکہ وہ ایکسٹرا زینیکا ویکسین لگوانے کا کہہ رہے ہیں جو نہیں لگ رہی۔ ایسے میں ایکسٹرا زینیکا ویکسین لگوانے کے لیے لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں کے چکر لگا رہا ہوں۔ اس حوالے سے حکومت کو پالیسی واضح کرنی چاہیے تاکہ مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔ تقریباً 15-20 دن ہو گئے ذلیل ہوں، کدی کسی ہسپتال بھیج دیں کدی کسی ہسپتال بھیج دیں، ویکسین لبھی نہیں پئی۔ کون سی ویکسین لگوانی ہے آپ نے؟ ایکسٹرا زینیکا۔ اچھا، کدھر جانا ہے آپ نے؟ سعودی عرب۔ ہاں جی، سعودی عرب وہ الاؤ کرتا ہے، کوئی اور نہیں؟ اور کوئی نہیں الاؤ ہو جی۔ دوسری جانب کورونا کے مہلک وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں مزید 8 اموات، 91 نئے کیسز اور فیصل آباد میں 7 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 76 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں 1 مریض جاں بحق اور 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنگ میں 8 اور چنیوٹ میں 3 افراد کی کورونا رپورٹ مثبت آئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی حکومت کی جانب سے لاہے عمل جاری نہیں کیا گیا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ خوبصورت نظر آنے کے چکر میں مرد اور خواتین کہیں ہیپاٹائٹس کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ فنڈز کی کمی کے باعث ہیپاٹائٹس آرڈیننس منصوبہ 2017 سے ٹھپ ہو چکا ہے۔ بیوٹی پارلرز، سیلونز اور حجام کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی۔ منصوبے کے تحت بیوٹی پارلرز، سیلونز اور حجام کو کٹس فراہم کرنا اور ہیپاٹائٹس سے پاک قرار دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ فراہم کیے جانا تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابقہ حکومت کی جانب سے ہیپاٹائٹس آرڈیننس 2017 متعارف کروایا گیا تھا، جس کے تحت تمام بیوٹی پارلر، سیلون اور حجام کو رجسٹر کر کے انہیں کٹس فراہم کی جانا تھی اور اس کے بعد ہیپاٹائٹس سے متعلق ٹریننگ دی جانا تھی اور انہیں ہیپاٹائٹس پاک کے حوالے سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جانا تھا، مگر 4 سال ہو گئے منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث رکا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حجام اور شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے، اسے مکمل ہونا چاہیے۔ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے نا انہیں پورا کیا جائے۔ حجام کی دکان پہ جو انہوں نے کہا تھا رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، اس کے متعلق ان کو سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ منصوبہ اچھا ہے، یہ اس پہ کام ہونا چاہیے، اس سے ہم بھی محفوظ رہیں گے اور شہری بھی محفوظ رہیں گے۔ فوکل پرسن پروگرام ہیپاٹائٹس کنٹرول ڈاکٹر عطاء المونم کا کہنا ہے کہ PC1 منظور ہو چکا ہے، جلد کٹس مل جائیں گی، جس کے بعد ان کی ٹریننگ اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان اس پر کام کر رہی ہے اور آرڈیننس کے تحت عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزا بھی دی جا سکے گی۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کو بہت سی کٹس اور جو ہمارے ہیپاٹائٹس کلینکس ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو امپروو کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو رکا ہوا تھا سسٹم ہمارا جو باربرز اور سیلونز کے حوالے سے اور بیوٹی پارلرز کے حوالے سے، ان کی ٹریننگز اور ان کے ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ لینے جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس آرڈیننس کے تحت محکمہ صحت افسران کو بیوٹی پارلر، سیلون اور حجام کو چیک کرنے کے اختیارات ہوں گے۔ ماہر امراض کا کہنا ہے ہیپاٹائٹس آرڈیننس 2017 بیوٹی پارلر، سیلون اور حجام پر نافذ العمل ہونے سے اس بیماری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ اسدار حسین، فیصل آباد۔ بات بتائیں آپ کو کہ عید کی چھٹیوں میں فیکٹریاں بند رہیں، ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی رہی۔ صنعتی شہر فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس سال کی بہترین حد تک آن پہنچا۔
मगर फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्ट चलने के साथ ही फिजा में मुज़र सेहत ज़र्रात की मिकदार में फिर से इजाफा हुआ है। तफसीलात मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। ईद की छुट्टियों में एक हफ्ता लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर बंद रहीं तो ट्रैफिक का पहिया भी जैम रहा। फैसलाबाद में आलूदगी साल की कम तरीन शरह 68 पॉइंट तक पहुंच गई। मगर इसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही शहर भर के तमाम सनती यूनिट्स की चिमनियां इसी तरह काला धुआं उगल रही हैं, जिसके बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में खासा बिगाड़ पैदा हो चुका है। माहिरीन माहौलियात क्या कहते हैं, जानिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ख़राब होने का मेन रीज़न ही आपके प्रोसेसेस का दोबारा स्टार्ट होना है। जो प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपकी प्रोसेसिंग है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें या आप अपनी उसके बाद लेदर इंडस्ट्री को देख लें, वो सारे इंडस्ट्रीज पानी और बाकी रिसोर्स का बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है वो आपकी जैसी इंडस्ट्री चलती है तो आपकी जो है वो एमिशंस बढ़ जाती हैं। एमिशंस बढ़ने के साथ साथ आपका नेचुरल रिसोर्स के ऊपर लोड बढ़ जाता है और इन दी एंड जब आप कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं बदले में आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंतहाई शरह एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 101 पॉइंट से भी तजावुज़ कर चुकी है। माहिरीन सेहत कोरोना के इस बहरान में क्या कहते हैं, जानिएगा। कोविड में भी जिन लोगों के पल्मोनरी सिस्टम पे इफेक्ट होता है उनके लिए साफ फिजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अगर उनको ऑक्सीजन ना प्रॉपर मिले तो उसमें उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांस होते हैं। नॉर्मल भी जितने लोग हम रह रहे हैं हमें भी साफ फिजा की उतनी ही ज़रूरत है जितनी दूसरे लोगों को ज़रूरत है। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पे शहरियों ने क्या सवाल उठाया है, वो भी जानिएगा। हमें साफ हवा लॉकडाउन में ही मिलेगी, इसके अलावा हमें धुआं ही सूंघने मिलेगा। हुकूमत को चाहिए कि इसका कुछ हल करे। धुएं का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इंडस्ट्री चलने की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी आती है, हमारे इदारे और इन्वायरमेंट वाले इदारे कुछ भी नहीं इसके ऊपर कंट्रोल मेजर ले रहे कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। महकमा माहौलियात, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस समेत मुतलका तमाम डिपार्टमेंट अगर अपनी जिम्मेदारियां खुशूसलूबी से अदा करें तो माहौलियात के मसले के ऊपर काबू पाया जा सकता है। कि थाना सरगोदा रोड के इलाके हजवेरी टाउन का रिहायशी 25 साल हसन अब्बास लापता है। पुलिस गुज़िश्ता 5 रोज से लापता हसन अब्बास का पता लगाने में नाकाम है। वालिदा अपने लख्ते जिगर की तलाश की गर्ज से सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई हैं। आपको बता रहे हैं कि थाना सरगोदा रोड के इलाके हजवेरी टाउन का रिहायशी 25 साल हसन अब्बास लापता है। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा, हसन अब्बास लापता है जबकि वालिदा सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई। सरगोदा रोड के इलाका हजवेरी टाउन गली नंबर 3 का रहायशी 25 साल हसन अब्बास गुज़श्ता 5 रोज़ से लापता है और ऐसे में जो लवाहिकीन हैं वो सिटी 41 के दफ्तर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस को दरख्वास्त दी थी जिस पे जो है वो पुलिस इनके साथ ताउन नहीं कर रही। पुलिस की जानिब से जो है वो गुज़श्ता 5 रोज़ से लापता हसन अब्बास को ताहाल पता नहीं लगाया गया कि वो कहाँ पे है इस वक्त। तो इस हवाले से जो है वो हसन अब्बास की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएगा कि हसन अब्बास जो है वो कहाँ से लापता हुआ है और कितने दिन हो गए हैं उसे लापता हुए, पुलिस इसमें क्या कर रही है? अलर्ट अस्पताल से हुआ, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना ढूंढा है ना हमें बताया कुछ है कि वो मिले हैं या नहीं मिले। अच्छा, ये बताइएगा कि अलाइड हॉस्पिटल में क्या ज़ेरे इलाज था हसन अब्बास? हाँ जी, इलाज हो रहा था उसका। उसके पेट में दर्द होती थी तो वो आंदरों का मसला था, उसके वजह से खाना पीना बंद किया हुआ था, मेडिसिन लग रही। मैं चाय लेने गई थी, मुझे चाय लेने भेजा, जब मैं ऊपर आई तो ऊपर जब आई तो नहीं था वो। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे जो हसन अब्बास की वालदा हैं इनके मुताबिक अलाइड अस्पताल में हसन अब्बास ज़ेरे इलाज था जिसका वहाँ पे इलाज चल रहा था और गुज़श्ता 5 रोज़ पहले वहाँ से वो लापता हुआ है जबकि ये चाय लेने गई थी। और ऐसे में जो है वो लवाहिकीन की जानिब से थाना सरगोदा रोड में दरख्वास्त भी दी गई है, लेकिन पुलिस जो है वो इस हवाले से ताहाल इनके साथ ताउन नहीं कर रही। इनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से जो है वो ताहाल बच्चे का सुराग नहीं लगाया गया। ऐसे में जो है वो लवाहिकीन सिटी 41 के दफ्तर पहुँचे हैं और इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द उसका पता लगा के हमारे पते पे जो है पहुंचाकर शुक्रिया का मौका दिया जाए। जी उस्मान हैदर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि पुलिस ताहाल पता नहीं लगा सकी जबकि वालिदा सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई हैं। महंगाई, बेकाबू और मुनाफाखोर मुंह जोर फैसलाबाद में गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए कोई सहूलत बाजार ना लगाया जा सका। तफसीलात मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में।
रमजान बाजार खत्म होते ही महंगाई का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया। मुनाफाखोरों का मार्केट में राज है, जबकि हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर को 24 मई तक बाजार लगाने का हुक्म दिया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका और बाजार की जगह खाली पड़ी है। पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजारों की तर्ज पर बाजार लगाने का हुक्म दिया था, जिसके तहत जिला भर में 19 सहूलत बाजार लगने थे, जहाँ सरकारी रेट पर अशियाए खुर्दोनोश फराहम होना थी, जबकि महंगाई कंट्रोल करने के लिए भेजा जाने वाला सरकारी खत भी नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में काश्तकार अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे और अवाम को चोर बाजारों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब जंग में काश्तकार मुनासिब कीमत न मिलने पर परेशान हाल हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 40 रुपए से 60 रुपए फी किलो बिकने लगा, जबकि काश्तकार चंद रुपयों में बेच रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योट में साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे ठप होकर रह गए। 90 करोड़ रुपए की लागत से 47 देहातों समेत शहरी इलाकों में शुरू होने वाला सुई गैस का मंसूबा ताखीर का शिकार है। साल 2021 में भी चिन्योट के बेशतर इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं। सुई गैस मंसूबे के तहत देहाती इलाके जिनमें मौजा मुतरमा, मौजा माते, मौजा कांजुआ, हुसैनाबाद, पठानकोट समेत शहरी इलाके मोहल्ला दिल खुशाब, कोट आमद यार, तौहीद टाउन और अली टाउन समेत चिन्योट सिटी में गैस पाइपलाइन ताहाल न बिछाई जा सकी। साबका दौरे हुकूमत में 90 करोड़ रुपए की खती रकम से शुरू होने वाला सुई गैस का मंसूबा मुकम्मल न होने पर शहरी मुंतखब अवामी नुमाइंदों और हुकूमती कारकर्दगी से मायूस दिखाई देने लगे। ऐसे में शहरियों ने जल्द सुई गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। नून लीग के दौर में गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन 2 साल गुजर गए, अभी वैसे के वैसे ही पाइप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर से हमें लकड़ी लानी पड़ती है, वो हम लकड़ी भी महंगी है। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट ने कुछ करना की शुरू की करना, जेडे गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट दे ना मुकम्मल जेडे मंसूबे सीगे वो मुकम्मल नहीं हुए, रुकवा दिते गए हैं, तो इन्होंने की करना है। चिन्योट के शहरियों ने मुतालबा किया है कि सुई गैस के मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। शहरी हो जाएं होशियार, प्लॉट लेने से पहले तस्दीक कर लें कि कॉलोनी रजिस्टर्ड है या नहीं। तहसील टोबा टेक्सिंग में 50 के करीब कॉलोनीज गैर कानूनी निकली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में प्लॉट लेने वाले शहरी पहले तस्दीक कर लें कॉलोनी रजिस्टर है या गैर कानूनी। तहसील टोबा टेक्सिंग में 50 के करीब कॉलोनीज गैर कानूनी निकली। इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनीज की तफसीलात इकट्ठी कर ली गई। ग्रीन टाउन, रऊफ सिटी और प्राइम सिटी गैर कानूनी निकली। गुलिस्तान कॉलोनी, न्यू सुभान गार्डन और मक्का सिटी हाउसिंग कॉलोनी भी गैर कानूनी निकली। वली टाउन, मदीना गार्डन समेत 50 के करीब कॉलोनीज गैर कानूनी है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि तमाम कॉलोनीज के इंतकाल रोक दिए और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि काफ़ी देर पहले की आबाद हैं और उन्होंने एक्सटेंशन की हुई हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो थी वो उनकी कटिंग स्टार्ट थी काफ़ी देर की, उनको कोशिश की है कि वो अंडर द लॉज अगर वो कवर होती हैं, और जो बिल्कुल किसी किस्म से भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हमने इंतकालात जो हैं वो बंद किए हुए हैं। देखना है कि इंतजामिया तमाम गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई कर पाएगी या सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। थर्मल पावर स्टेशन को बंद करने का फैसला नामंजूर। मुलाजमीन को सरप्लस करने पर पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सैकड़ों मुलाजमीन को थर्मल पावर स्टेशन से सरप्लस करने के खिलाफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से स्टीम पावर में एहतजाज किया गया। इस दौरान मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर जोनल चेयरमैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन मियां मोहम्मद शकील का कहना था कि 20-20 साल से मेहनत करके तरक्कियां हासिल करने वाले मुलाजमीन को सरप्लस किया जा रहा है, जो मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ऐसे में थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन को सरप्लस करने का सिलसिला बंद किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये फैसला वापस ना लिया गया तो हम इंशाल्लाह एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। वो आज भी हम खड़े हैं यहाँ पे। आज मुल्क भर में तमाम बिजली घरों के फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, जामशोरो, लाखड़ा, गुद्दू, कोठरी पावर हाउस, तमाम पावर हाउसेज में मुकम्मल तालाबंदी है। पावर हाउसेज बंद हैं, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और इंशाल्लाह हमारा अगला लाहा अमल कोर्ट में जाने का। थर्मल पावर के मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सरप्लस करने के अहकामात वापस ले, वगरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अहल कमीशन के जरिए फर्दों का इजरा रोकना ये रेवेन्यू हुकाम के लिए चैलेंज बन गया। नोटिफिकेशन जारी करना भी किसी काम ना आया। साली ने मलबा अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के हुकाम पर डाल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वजीर कार्ड सेंटरों में आने वाले साइलिन का मौकफ है कि आम शहरियों को ख्वार किया जा रहा है, मगर जो बासर अफराद हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। डेवलपर्स को फर्द के इजरा में आसानियां पहुंचाई जा रही हैं जिसका सरकार को भी कोई फायदा नहीं मिलता, जबकि आम शहरियों को असिस्टेंट कमिश्नर दफातर में रजू करने का कहा जाता है। शहरियों ने कहा ये अहम इशू है, इंतकाल भी जानबूझकर अहले कमीशन के जरिए से ही करवाए जाते हैं ताकि जाती फायदे हासिल किए जा सकें। एल कमीशन के हवाले से जो है वो पिछले कुछ 6 माह साल से हम ये सुन रहे हैं कि जो है ट्रांजैक्शनल फर्ज जो है वो बतौर एल कमीशन जारी नहीं की जा रही। लोगों से ये कहा जा रहा है कि डीसी साहब जो है वो एल कमीशन अपॉइंट करें, दैन फर्द जारी होगी, या ADCR साहब करें, या कंसर्न्ड AC जो हैं डीलिंग वो करें, तो उसके बाद जो है वो फर्द इशू होगी। दूसरी जानब कम्युनिकेशन ऑफिसर नादिया अहमद का कहना था मेरिट पर काम किया जाता है, कहीं पर कोई मसला आया तो एक्शन लिया जाएगा। जो सरकारी फीस है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, वो हर सेंटर पे डिस्प्लेड हैं, नोटिफाइड हैं, और उसके अलावा किसी भी किस्म की फीस देना जो है वो लोगों को बताया गया है कि जो सरकारी फीस है उसके अलावा कोई पैसे ना दिए जाएं। तो अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट कहीं पे भी आ रही हैं तो हमारे सेंटर पे टोल फ्री नंबर मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली हेल्पलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई किसी को ज़्यादा पैसे देने की कोई शिकायत है तो वो कंप्लेंट सेल पे थ्रू UAN नंबर या हमारे टेलीफोन बोर्ड के जरिए रजिस्टर करवाई जा सकती है। प्रॉपर्टी का काम करने वालों का कहना है इस रात आम शहरियों पर मुरतब हो रहे हैं और अब इसका हल निकालना लाजमी हो चुका है। शहरियों का मुतालबा है कि रेवेन्यू काम से उन्हें बचाया जाना चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए कि उनके काम बराह रास्त और बेहतर तरीके से हो सकें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं कि 30 टैक्स गुजार कंपनीज ने कौमी खजाने को 12 करोड़ 49 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करवाया। कंपनीज ने शहरियों से टैक्स वसूल कर लिया मगर रिकॉर्ड में हेर फेर करके FBR को जमा नहीं करवाया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों की जानिब से मजमूई तौर पर 12 करोड़ 49 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। हाफिज इंटरप्राइजेज 52 लाख 65 हजार, आमिर अली 9 लाख 4 हजार, शेख शाहिद परवेज सन्स 40 लाख 69 हजार, अहमद रजा 4 लाख 62 हजार, शबीर अहमद एंड कंपनी 4 लाख 14 हजार, फ्रेंड्स ट्रेडर्स ने 4 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। परवेज एंड को 26 लाख 50 हजार, जफर कारपोरेशन 21 लाख, अख्तर अली 33 लाख, कमाल अहमद 76 लाख, गाजी सिद्दीक ने 8 लाख 72 हजार की टैक्स चोरी की। इसी तरह रमीज एंड सन्स 32 लाख, इसहाक टेक्सटाइल 1 करोड़ 51 लाख और इब्राहिम अब्दुल्ला ने 24 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इरफान सुलेमान 13 लाख 71 हजार, परवेज एंड को 5 लाख, नदीम एंड को 4 लाख, बीबी जान 29 लाख 18 हजार, यूनाइटेड स्नैक्स 3 करोड़ 22 लाख रुपए, फ्रेश फ्लोर मिल्स 1 लाख 28 हजार, अजीज फ्लोर मिल्स 1 लाख 27 हजार, खालिद फ्लोर मिल्स 1 लाख 57 हजार, जबकि पाकिस्तान इनर लाइनिंग ने 4 लाख 31 हजार रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं करवाए। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी ने रीजनल टैक्स दफ्तर को रिकवरी और मजीद तहकीकात करने की हदायत जारी कर दी। आपको बताएं कि झंग में फैक्ट्री मुलाजमीन और उनके अहल खाना मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल को खत्म करके डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया गया। फैक्ट्री मुलाजमीन इलाज मुआवजे के लिए खार होने लगे। 2016 में सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी को अस्पताल का दर्जा दिया गया और 76 मुलाजमीन भर्ती किए गए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको एक बार फिर डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया है। 11,000 मजदूर और उनके अहले खाना इलाज की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल के खत्म होने से मुतासर होंगे। जो हमारे जिला टोपे में जो ज़ेर कफालत यहाँ पर ये अस्पताल जिला जंग में आते हैं, क्या उसका इलाज कहाँ होगा? फैसलाबाद जाना पड़ेगा। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो डिलीवरी केस में है, जो एडे प्रॉब्लम में जिला जंग सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में आए और उसे फैसलाबाद जाना पड़ेगा, कितना मुश्किल पैदा होगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ड्यूटी भी अस्पताल से खत्म कर दी गई है, जबकि अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन के अमल को भी रोक दिया गया है। मजदूरों के मुताबिक उन्हें इलाज मुआवजा के लिए फैसलाबाद जाना पड़ेगा। हमें जो सहूलतें दी जा रही थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। हॉस्पिटल में जो तमाम डॉक्टर थे तकरीबन
ختم کر دیے گئے ہیں، اسپیشلسٹ ختم کر دیے گئے ہیں. اگر علاج کرانا ہے، اگر ہم نے جانا ہے تو اب فیصل آباد جانا پڑے گا. ذرائع کے مطابق سوشل سیکیورٹی ہسپتال کی ایمبولینسز بھی واپس بھجوائے جانے کا امکان ہے. سوشل سیکیورٹی ہسپتال سے نہ صرف جھنگ بلکہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے فیکٹری ورکرز بھی مفت علاج معالجے کی سہولیات حاصل کر رہے تھے. فیکٹری ورکرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ. فیصل آباد میں کرونا سے آگاہی کے لیے ریلی نکالی گئی. پاک فوج، ریسکیو، ڈولفن، ایلیٹ فورس اور ضلعی انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی. فیصل آباد میں کرونا سے آگاہی کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پاک آرمی کے اشتراک سے کاروان چل پڑا. پاک فوج، ریسکیو 1122، ڈولفن، ایلیٹ فورس اور ضلعی انتظامیہ کی گاڑیوں نے حصہ لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز محمد خالد نے کاروان کی قیادت کی. سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور دیگر افسران بھی موجود تھے. شرکاء نے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپورٹس، یوتھ افیئرز اور اسپیشل کوآرڈینیٹر لوکل گورنمنٹ مقرر ہونے کے بعد بلال اصغر وڑائچ کی ٹوبہ ٹیکسنگ آمد. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور MPA ٹوبہ سعید احمد سعیدی سے ملاقات، جاری کاموں پر بریفنگ لی. بلال اصغر وڑائچ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپورٹس، یوتھ افیئرز اور لوکل گورنمنٹ کے اسپیشل کوآرڈینیٹر مقرر ہونے کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ پہنچے. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور MPA ٹوبہ سعید احمد سعیدی سے ملاقات کی. MPA سعید احمد سعیدی نے بلال اصغر وڑائچ کو عہدے ملنے پر مبارکباد دی. ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی. ان کا کہنا تھا کہ شہر کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت کا احسن اقدام 3 ہفتوں پر محیط خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام 27 مئی سے شروع ہوگا. پہلے ویک میں ہفتہ صفائی، دوسرا ہفتہ نکاسیاب اور تیسرے ویک کو ہفتہ برائے صفائی ستھرائی سرکاری عمارات کے طور پر منایا جائے گا. ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا جس میں DG FDA ڈاکٹر فیصل عظیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز محمد خالد نے شرکت کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت ویژن کے مطابق 3 ہفتوں پر محیط خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام 27 مئی سے شروع ہو رہا ہے. خدمت آپ کی دہلیز کا مقصد عوام کی خدمت کے لیے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر اور مؤثر بنانا ہے. اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول، سید ایوب بخاری، نعمان علی، محمد حیدر، CEO ایجوکیشن علی احمد سیان، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیلتھ ڈاکٹر ذوالقنین، میٹروپولیٹن کارپوریشن، کالجز، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ملکی ایکسپورٹس کم ہوئیں تو ساتھ ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بھی جھٹکا لگا. 1 ماہ کے دوران 3.21 ملین روپے کی ایکسپورٹس میں کمی واقع ہوئی. ادارے شماریات نے اپریل کی رپورٹ جاری کر دی. مارچ میں ایکسپورٹس 2,11,506 ملین روپے رہیں، جبکہ اپریل میں ایکسپورٹس کم ہوتے 2,04,723 ملین روپے رہیں.